Sahih al-Bukhari Volume 6 Hadith 4747. کہ حدیث میں سے چھٹا والیوم 47 کو یاد کر لیں اگر جنہوں نے یہ مٹیریل تو سنا ہے، بات بھی سن رکھی ہے، اور لیکن ان کو حوالے کا نہیں پتا تھا، اس لیے حوالہ لازمی آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے. Narrated Ibn Abbas, Hilal bin Umayyah accused his wife of committing illegal sexual intercourse with Sharik bin Sama. اب یہاں پہ ایک اور کیس آ گیا کہ عورت نے کسی کے ساتھ بدی کی ہے یا سیکس کی ہے، مباشرت کی ہے، اور وہ محمد کے پاس کیس لے کے آیا ہے کہ میرا فیصلہ کرے. جی محمد کیا بولتا ہے آگے سے؟ And filed the case before the Prophet. ہاں فائل کیا کیس. The Prophet said to Hilal, اس نے محمد نے ہلال سے کہا either you bring forth a proof for witnesses or you will receive the legal punishment, lashes on your back. Oh my goodness, اس سے ذلت آمیز فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. دو چیزیں ہیں، ایک تو جو شاید میں نے ایک پوائنٹ انگلش میں نہیں بولا، اب اردو میں آپ کو بیان کرتا ہوں. بجائے اس کے کہ محمد کوئی اور انصاف کی بات کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ فیصلہ کیسے کروں، اور اب جو چیز اس کی سمجھ میں آئی وہ اتنی احمقانہ ہے، حماقت سے بھرپور ہے، ذلت آمیزی سے بھرپور ہے. اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے محمد کہ 4 گواہ لے کے آؤ، پھر بات کریں گے. ایک تو 4 گواہ لے کے آؤ، اگر نہ لے کے آئے تو تمہیں زبردست سزا اور کوڑوں کی سزا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بڑی بکواس کر رہا ہے اس موضوع پر کہ اسلام میں زنا کی سزا، شادی شدہ عورت اگر کسی مرد کے ساتھ زنا کرے، غیر مرد کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا کے موضوع پر یہ بہت زیادہ، حالانکہ اس کا بیان جو ہے وہ ہے بدی کے پروموٹر پر، اور بات اس کے بالکل مخالف کر رہا ہے. اب جو سزا ہے وہ تو ہے کہ اگر وہ زانیہ ہے، واقعی ہی ثابت ہو جاتی ہے، انسانی جان کی اسلام کے نزدیک بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، کیونکہ اسلام میں شادی شدہ زانیہ یا زانی کی سزا موت ہے، سنسار کیا جانا، رجم کیا جانا، اس کی سزا موت ہے. تو اس پہ حد لگتی ہے. اب اس کو یہ نہیں کہ جیسے وہ کسی کے گمان پر، اٹکل پچو پر اس پر سزا جاری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے گواہ لازمی ہے. اور اس کی دوسری صورت بھی ہے، وہ یہ جو دوسری صورت ہے یہ حدیث مبارکہ اسی کے مطابق ہے، جس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی کہ لعنت کی جائے گی. اور وہ یہ حدیث مبارکہ، یہ جو حدیث کا اس نے حوالہ دیا ہے وہ ہے 4747. تو اس حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں سے، کتاب التفسیر میں سے ہے یہ. تو حدیث نمبر ہے 4747. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ مجھے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی عدی نے از حشام بن حسان حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں اکرمہ نے از حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ کے ساتھ زنا کرنے کی تہمت لگائی. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد لگائی جائے گی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی شخص کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پائے تو کیا اس وقت وہ گواہ تلاش کرنے جائے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد جاری کی جائے گی، یعنی کہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے تہمت لگانے پر. یہ عورت کے حقوق ہیں،
अंधो जाहिलो, ये औरत के हुकूक है कि कोई उठकर उस पर ऐसी खामखा उसका शोहर हो या कोई भी औरत पर जड़ ना दे। ये जो तुम लोग बातें करते हो ना औरतों के हुकूक, औरतों के हुकूक, इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए हैं। ये ईसाइयत या मसीहत का स्टैंडर्ड नहीं है कि औरतों को हुकूक दिए जाए, औरतों को हुकूक दें। वो मेरे आपने बयानात में देख लिए होंगे। बस हजरत हिलाल ने कहा, जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा उसकी कसम, बेशक मैं अपने दावा में जरूर सच्चा हूं। अल्लाह ताला जरूर ऐसी आयत नाज़िल फरमाएगा जो मेरी पुष्ट को हद से बरी कर दे, सिवा इसके। इसके बाद हजरत जब्राइल आपके पास ये आयत लेकर नाज़िल हुए, और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाएं और उनके पास खुद अपने सिवा और गवाह ना हूं, तो ये हम सूरह नूर में से आयत 6 से आयत 9 तक इसको पढ़ेंगे। तो कुरान पाक की सूरह मुबारक है सूरह नूर, इसकी आयत है 6। और वो जो अपनी औरतों को ऐब लगाएं और इनके पास अपने बयान के सिवा गवाह ना हो, तो ऐसे किसी की गवाही ये है कि 4 बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वो सच्चा है, और 5वीं ये कि अल्लाह की लानत हो इस पर अगर झूठा हो। और औरत से यूं सजा टल जाएगी कि वो अल्लाह का नाम लेकर 4 बार गवाही दे कि मर्द झूठा है, और 5वीं ये कि औरत पर गजब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो। ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अलाई से फारग हुए तो आपने हजरत हिलाल को इन आयत पर अमल के लिए बुलवाया। सो उन्होंने हाजिर होकर गवाहियां दी, यानी कस्में उठाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर फरमा रहे थे कि अल्लाह जल इस बात को जानता है कि तुम में से कोई एक झूठा है, तो क्या तुम में से कोई तौबा के लिए तैयार है? फिर इनकी जोजा मोहतरमा ने खड़े होकर कस्में खाई, यानी 4 मरतबा कसम उठाकर शहादत दी कि मेरा खामद झूठों में से है। बस वो 5वीं शहादत पर पहुंची तो लोगों ने उसे रोका और कहा कि अगर तुम अपनी कसम में झूठी हो तो तुम्हारी ये कस्में दर्दनाक अजाब बन जाएंगी, कसबत बन जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बस वो औरत तरद्दुद का शिकार हुई, हिचकिचाई, हत्ता कि हमने गुमान किया कि अब ये रुजू कर लेगी, यानी कि अब ये मान जाएगी, मगर उसने कहा मैं कभी अपनी कौम को रुसवा नहीं करूंगी। और 5वीं शहादत देकर उसने लान मुकम्मल कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखना अगर ये औरत ऐसा बच्चा जने जिसकी आंखें बहुत स्याह पलकों वाली हों, इसके सुरीन मोटे हों और पिंडलियां भरी हुई हों, तो वो शरीक बिन सहमा का है। बस उस औरत ने इस तरह का बच्चा जना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की किताब का हुक्म ना आ चुका होता तो मेरा इस औरत के लिए कुछ और ही सलूक होता, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया कि इसने कसम उठा ली, अब वो अल्लाह के अजाब की मुस्तहक हो गई। तो अब हम इसी मौजू को बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल में ये लियान वाला मामला या कसम वाला मामला क्या है। और यहां पर आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा। ये जो बार बार ये भाषण दे रहा है, इसी बयान में ये बड़ा भाषण दे रहा है कि औरतों के हुकूक, बड़ी इसको दर्द हो रहा है, औरतों के हुकूक का बड़ा दर्द हो रहा है। तो औरतों के अगर हुकूक तुमने देखने हैं तो इस्लाम में देखो, ईसाइयत में औरतों के हुकूक देखो तो शर्म करोगे, शर्म से डूब मरोगे। औरतों के हुकूक ईसाइयत में देखो, ये देखो औरतों के हुकूक। अदद की किताब प्रोटेस्टेंट में गिनती और कैथोलिक में अदद, इसका बाब 5-11 से गैरत की शरीयत। और खुदा ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब करके कर और उनसे कहा, अगर किसी आदमी को की औरत गुमराह हो जाए और अपने शौहर से बेवफाई करे और कोई मर्द उसके साथ हम बिस्तर हो और ये बात उसके खामन से पोशीदा हो और उसकी नापाकी छुपी रहे और उस पर कोई गवाह ना हो और वो पकड़ी नहीं गई और शौहर को गैरत का ख्याल आए
और उसको अपनी बीवी से बदगुमानी हो कि वो नापाक है, या वो गैरत के ख्याल से अपनी बीवी से बदगुमान हो, खा वो वाकई नापाक हुई या नहीं, तो वो मर्द अपनी औरत को कहन के पास लाए और उस औरत की कुर्बानी के लिए जौ के आटे के 1 ईफा का 10वां हिस्सा लाए। उस पर तेल न डाले, ना उस पर लुबार रखे, क्योंकि ये गैरत की नजर है, यानी ये याद दही की नजर है जिसे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब कहन उस औरत को आगे लाए और खुदावंद के सामने उसे खड़ी करे, और कहन एक मिट्टी के बर्तन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में मिलाए, और कहन उस औरत को खुदावंद के सामने खड़े करे और उसका सर नंगा करे, और याद दही की नजर की कुर्बानी जो गैरत की नजर की कुर्बानी है उसके हाथों पर रखे, और कहन के हाथ में वो कड़वा पानी हो जो लानत का बायस होगा। और कहन औरत को कसम देकर कहे, अगर कोई मर्द तेरे साथ हम बिस्तर नहीं हुआ, और अगर तू अपने खामद की होती हुई किसी के साथ और के साथ नापाक नहीं हुई, तो इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत का बायस है तू बची रहेगी। लेकिन अगर तू अपने खामद की होती हुई किसी और पर माइल हुई है और उसके साथ नापाक हुई और गैर ने तेरे साथ सोहबत की, तब कहन औरत को लानत की सौगंध देकर कहे कि तेरे लोगों में खुदा तुझ पर को लानत और तेरे लोगों में खुदा तुझको लानत और सौगंध करे, खुदावंद ऐसा करे कि तेरी रान सड़ जाए और तेरा पेट सूज जाए, और यह पानी जो लानत लाने वाला है तेरी अंतड़ियों में दाखिल होकर तेरे पेट को सुझाए और तेरी रान को सड़ाए। तब औरत कहे आमीन आमीन। फिर कहन उन लानतों को कलमबंद करे और कड़वे पानी से उनको धोए, और कहन ये कड़वा लानत लगाने वाला पानी उस औरत को पिलाए। तो ये लानत लगाने वाला पानी कड़वाहट पैदा करने के लिए उसके अंदर दाखिल होगा, मगर उससे पहले कहन उसके हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी लेकर खुदावंद के सामने हिलाए और उसे मज़बा के नजदीक लाए, और उसकी याद दहानी की नजर की कुर्बानी से कहन 1 मुट्ठी ले और उसे मज़बा पर जलाए, और बाद इसके वो पानी उस औरत को पिलाए। और जब वो उसे पानी पिला चुके तो अगर वो नापाक थी और उसने अपने खामद से बेवफाई की थी, तो वो लानत का पानी उसके अंदर दाखिल होकर कड़वाहट पैदा करेगा। तब उसका पेट सूज जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वह औरत अपने लोगों में लानत का निशाना होगी। और अगर वो औरत नापाक नहीं हुई थी बल्कि पाक थी, तो वो तंदुरुस्त रहेगी और उससे औलाद होगी। यह गैरत की शरीयत है, जबकि कोई औरत अपने खावंद की होती हुई गुमराह और नापाक हो जाए, या जब भी ये पॉइंट की बात है, या जब भी मर्द को गैरत का जोश हो और वो अपनी बीवी से बदगुमानी करे और उसको खुदावंद के सामने खड़ा करे और उस सब शरीयत के मुताबिक कहन उसके साथ अमल करे, तो मर्द अपने गुनाह से पाक होगा और गुनाह उस औरत के सर पर होगा। यानी कि जब भी मर्द को गुस्सा आ गया किसी भी बात पर, औरत आगे से बोल पड़ी, कोई बात हो जाती है घर में, अब वो क्या करे? अब वो उसको बेइज्जत करे। ईसाई औरतों, मसीही औरतों, क्रिश्चियन औरतों, ये बाइबल के ये हवाले पढ़ो, कितना तुम्हारे साथ जुल्म है बाइबल करती है। मेरे पिछले बयान में भी आपने देख लिया होगा। अब आते हैं बदी के प्रमोटर। बदी के प्रमोटर कौन है? बदी का प्रमोटर है बाइबल का खुदा और बाइबल का दूसरा खुदा यस्सु। ये मैं बयानात में साबित कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मजीद इस पर थोड़ा सा कलाम करूंगा। बदी के प्रमोटर में हम देखते हैं कि यहूदा ने अपनी बहू को हामला किया। यहूदा ने अपनी बहू को हामला किया, उसके साथ जिना किया, मगर बाइबल के खुदा को मामूली शर्म नहीं आई। ये तो फेल हो गया, सामने आ गया, सबके सामने आ गया। ये आप कहां पे पढ़ेंगे? तकवीन 38 बात पूरा इसको पढ़े और ये ओपन हो गई बात। उसकी बहू ने भी इकरार कर लिया, यहूदा ने भी इकरार किया, मगर इसको संसार नहीं किया गया, इसको सजा नहीं दी गई, कोई फतवा नहीं दिया गया, बल्कि अनाम के तौर पर इसी ये जो पैदाइशें हुई, 2 बेटे पैदा हुए, फारस और जारे, इसी में से खुदा का बेटा पैदा हो गया, इसी में से पैदा हुआ ना। और तकरीबन बेशतर अंबिया इन्हीं
हरामियों में से हुए। फिर आगे देखते हैं सैमुअल 2 इसका बाब 13। अब शालूम बिन दाऊद यानी कि दाऊद के बेटे ने अपनी बहन तामार की इज्जत जबरन लूटी। ये पूरा बाब आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा मजेदार है कि उसने अपनी बहन के साथ किस तरीके से कार्रवाई डाली। तो बाद में उसके साथ क्या किया, और दाऊद ने बादशाह होते हुए भी शरीयत नाफज नहीं की, ताकि अब शालूम के साथ वो प्यार करता था, उसका दिल जो खराब ना हो। तो बड़े मजेदार बयानात हैं बाइबल में से। और फिर सैमुअल 2 में बाब 11 में अगर आप पढ़ेंगे, सैमुअल 2 बाब 11 में दाऊद ने इलियाम ऊजिया हित्ती की बीवी को हमला किया जब वो उसकी बीवी थी। बाद में उसको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। क्या क्या आप बाइबल में से देखेंगे, हमला किया। और उस वक्त वो नबी भी था और बादशाह भी था, नबी भी है और बादशाह भी है, मगर बच गया, सजा नहीं हुई। फिर आप देखेंगे लूत की दोनों बेटियां अपने हकीकी बाप लूत से हमला हुई। इसका आप देखेंगे तकवीन बाब 19 यानी कि पैदाइश की किताब 19 बाब में यह पूरा वाकया मरकूम है। फिर यस्सु ने जानिया को जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी वो कालत करके छुड़ाया। इसको आप देखेंगे यूहन्ना 8 बाब 1 था 11 आयत। तो ये वो वाकया था जो जिना पर हैं। तो बदी के प्रमोटर कौन हुए, इस्लाम या ईसाइयत। और आप एक चीज, ठीक है मुसलमानों का किरदार इस वक्त बहुत खराब हो चुका है, मगर फिर भी आप देखेंगे कि मुसलमान ये बदी वाले मामले में, जिना वाले मामले में थोड़े बहुत जो है डरते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। वरना अक्सरियत जो है मुसलमानों की अक्सरियत वो है जो जिना से बहुत डरती है, जिना से भागती है। और इनमें से जो मुसलमानों में जो जानी है वो भी कुछ खौफे खुदा रखते हैं। ये ईसाइयों के, ये अपना ईसाइयों के जो ममालिक में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वक्तन फोक्तन आप देखते हैं, और आप ये एक बात देखेंगे कि सारी ईसाई औरतें बेहजाब फिरती हैं, जबकि इनकी जो नन्स हैं, सिस्टर्स हैं, रहबाएं हैं, वो बड़े हिजाब में फिरती हैं, बड़ा हिजाब और बड़ी वो लिपटी दिखती। और उनके फिर भी मामला आप इंटरनेट पर नन पोर्न, मैं दोबारा ये वेबसाइट बता रहा हूं, NUN नन PORN पोर्न, नन पोर्न गूगल पर टाइप करें और खुदा की बेटियों के कारनामे देखें। खुला चैलेंज है आपको इस पर यकीन आ जाएगा कि बदी के प्रमोटर ईसाइयत है, मसीहत है, सिर्फ अल्जाम नहीं हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस बदी के प्रमोटर मजहब से निकालकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने जो